एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन। 3 लाइन दिए हैं, उनके डायरेक्शन को साइन गिवन दिया हुआ है। इसको सपोज कर लेते हैं। डायरेक्शन को साइन का सिंबल L1 M1 N1, इसका L2 M2 N2, थर्ड लाइन का L3 M3 एंड N3। ठीक है, पहले लाइन L1 और L2 की बात करते हैं। अगर आप L1 विल बी परपेंडिकुलर टू L2 कब होगा? इफ multiplication of their direction cosine will be 0. L1 L2 M1 M2 plus N1 N2 should be equal to 0. तो वैल्यू निकालते हैं। L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 12 by 13 into 4 by 12 by 13 into 4 by 13 plus minus 3 by 13 into 12 by 13 plus minus 4 by 13 into 3 by 13. 12 4s are 48, 169 minus 36, 169 minus 12, 169. 36 और 12 minus 48 plus 48, तो 0 आ गया। Therefore, L1 is perpendicular to L2. Second case, consider L2 L3 M2 M3 plus N2 N3. 4 by 13, 3 by 13 plus 12 by 13, इसकी है minus 4 by 13 plus 3 by 13 into 12 by 13. That is equal to 4 3s are 12, 169. 12 4s are 48, minus 48 upon 169, 36 upon 169. 36 or 12, 48 minus 48, 0. So we can say L2 is perpendicular to L3. First and second. थर्ड पार्ट के लिए हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर L3 L1 M3 M1 प्लस N3 N1। इन दोनों लाइन को चेक करना हमने अभी। 3 by 13 मल्टीप्लाई बाई 12 by 13 minus 4 by 13 into minus 3 by 13, 12 by 13 into 12 by 13 into minus 4 by 13. 36 upon 169 plus 12 upon 169 minus 48 upon 169. 36 per 12, 48 minus 48, 0. So therefore, L3 is perpendicular to L1. This you can mark at third. From first, second and third, L1 perpendicular to L2, L2 perpendicular to L3, L3 perpendicular to L1. Therefore, we can say given lines are mutually perpendicular to each other. ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। कहते हैं कि लाइन है passes through the point AB, another line passes through the point CD. We have to prove AP is perpendicular to CD. ठीक है, तो पहले AB से स्टार्ट करते हैं। A के कोऑर्डिनेट 1 minus 1 2, B 3 4 minus 2, इसको x1 y1 z1, ये हमारी होगी x2 y2 z2। Direction ratios of a line AB are x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. 3 minus 1, 4 plus 1, minus 2 minus 2. 2 5 minus 4. That you can mark it A1, B1 and C1. ठीक, CD का डायरेक्ट निकाल देते हैं। डायरेक्शन रेशियोज of line CD are x2 minus x1, 3 minus 0, y2 minus y1, 5 minus 3, z2 minus z1, 6 minus 2, 3, 2 and 4. This we can mark it A2, B2 and C2. परपेंडिकुलर चेक करना है तो प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे। कंसीडर
A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2, that is equal to 2 into 3 plus 5 into 2 plus minus 4 into 4. 2 3 is 6 plus 10 minus 16, which is equal to 0. Therefore, line AB is perpendicular to line CD. Line passes through point AB is parallel to the line passes through the line CD. ये हमें प्रूव करना है. मेथड वही सेम है. Direction ratios of line AB are, first we write formula x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. 2 minus 4, 3 minus 7, 4 minus 8, minus 2, minus 4, minus 4. A1, B1, C1, we can mark it. Direction ratios of line CD are 1 minus minus 1, 2 minus minus 2, 3 minus 1. ये 2 हो गया, ये 4, ये 2. This you can consider it as A2, B2, C2 direction ratios. Ratio check करनी है हमने. Consider A1 by A2. Minus 2 divided by 2, that is equal to minus 1. B1 by B2. Minus 4 divided by 4, again minus 1. C1 by C2. Minus 4 divided by 4, minus 1. Here A1 over A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. Therefore, given lines are parallel. मतलब AP parallel CD. That we have to prove it. Fourth question में जो required line है बेटा, that passes through a point 1 2 3 and parallel to a vector 3i plus 2j minus 2k. तो पहले इसका position vector find करेंगे. Let vector A equal to position vector of point A 1 2 3, that is equal to I plus 2j plus 3k. पैरेलल वेक्टर को हम डिनोट करते हैं B के साथ 3i plus 2j minus 2k. Therefore, equation of required line in vector form, that is equal to vector R equal to A plus vector lambda vector B. Vector R as it is, vector A की वैल्यू दी हुई I plus 2j plus 3k cap lambda times vector B 3i plus 2j minus 2k cap. ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट A दिया हुआ है जिससे लाइन पास करके जा रही है, और जो लाइन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लाइन है, वेक्टर B के, मतलब हमारा पैरेलल वेक्टर हो गया. तो फार्मूला क्या है अभी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा B. A की जगह वैल्यू दी हुई है 2i माइनस j प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम वेक्टर B I प्लस 2j माइनस k कैप. तो ये हमारा आंसर हो गया. तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है. वेक्टर R क्या होता है, वेक्टर R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट x y z on given line, that is equal to xi plus yj plus zk. इसको मार्केट वन कर लो, ये वैल्यू यहाँ डाल दो. तो xi प्लस yj प्लस zk कैप इक्वल टू, इधर i के कोएफिशिएंट कंबाइंड कर लो. इधर 2 है प्लस लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा इंटू i कैप माइनस j प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू j कैप प्लस k के कोएफिशिएंट 4 है, इधर माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा k कैप. इक्वेटिंग the coefficients of I cap, j cap, k cap on both sides. तो लेफ्ट हैंड में x है, I का कोएफिशिएंट इधर है 2 प्लस लैम्डा,
लेफ्ट साइड y, इधर है -1 + 2 लैम्डा, इधर z इक्वल टू 4 माइनस लैम्डा। यहाँ से तीनों से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। 2 उधर माइनस हो जाएगा, x - 2 इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। माइनस इधर ऐड हो जाएगा, y + 1 2 लैम्डा, 2 से डिवाइड किया इक्वल टू लैम्डा। z -4 इक्वल टू माइनस लैम्डा है, तो -1 से डिवाइड किया तो लैम्डा आ गया। तीनों को कंबाइन करेंगे तो x - 2 अपॉन 1, y + 1/2 इक्वल टू z -4 अपॉन -1 is the required equation of the straight line in Cartesian form that passes through the point A and parallel to this given line. Okay, first of all we find the direction ratio of this line. Direction ratios of given line are, these are the direction ratios 3, 5, 6. You can mark it A, B, C. Required line जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इज पैरेलल टू गिवन लाइन। देयरफॉर तो उसके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर 3, 5, 6। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1, z1 and having direction ratios A, B, C is x minus x1 upon A, y minus y1 upon B equal to z minus z1 by C। ये हमारा पॉइंट क्या था, x1, y1, z1 जिससे पास करके जा रही लाइन। इक्वेशन क्या होंगी, x + 2 equal to y - 4 equal to z + 5 divided by ABC, that is 3, 5, 6. That is the equation of the required line. Okay, clear? Question number 7. The Cartesian equation of line is x - 5/3 equal to y + 4/7 equal to z - 6. Let इसको सपोज कर लो किसी के, y + 4/7 z - 6/2 equal to lambda, where lambda is any scalar. x - 5/3 equal to lambda, y + 4/7 equal to lambda, z - 6/2 equal to lambda. क्रॉस मल्टीप्लाई करके x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो x विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा + 5, y इक्वल टू 7 लैम्डा -4 और z इक्वल टू 2 लैम्डा + 6। वेक्टर r क्या होता है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट x, y, z ऑन लाइन। तो वेक्टर आर क्या है, xi + yj + zk। ये जो अपने x, y, z की वैल्यू निकालेंगे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। x की वैल्यू थी 3 लैम्डा + 5 i कैप, y की वैल्यू 7 लैम्डा -4 j कैप और z की वैल्यू 2 लैम्डा + 6 k कैप। सेपरेट कर लो, विदाउट लैम्डा कौन सी वैल्यू है, 5i - 4j + 6k कैप। बाकी इनमें से लैम्डा कॉमन निकाल लेते हैं, तो वी आर लेफ्ट विथ 3i + 7j कैप + 2k कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। क्वेश्चन ये दिया हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। फॉर्मूला देखो पहले, कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through 2 points P, x1, y1, z1 and Q, x2, y2, z2 is x - x1 upon x2 - x1
y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1। क्लियर? ये हमारे पास x1 y1 z1 पॉइंट है, ये हमारे पास x2 y2 z2 पॉइंट है। Therefore required line is x minus x1 that is 0, y minus y1 वो 0, z minus z1 वो भी 0। इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 0 -2 0 3 माइनस 0, तो x अपॉन 5 y अपॉन -2 इक्वल टू z/3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के अंदर वेक्टर फॉर्म फार्मूला क्या है? वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा इंटू b माइनस ए इज द पोजिशन वेक्टर को पॉइंट O ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 0i 0j 0k। ठीक है, ओरिजिन। b वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सेकंड पॉइंट दैट इज योर a, 5 minus 2 3, that becomes 5i minus 2j plus 3k कैप। इसमें वैल्यू डाल देते हैं। therefore required line is वेक्टर r इक्वल टू a, तो क्या 0 ही हो जाएगा सर, 0i 0j 0k कैप, लैम्डा टाइम 3 minus 2 5, और we have to find the equation line passing through these points। ठीक है, फर्स्ट कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला इज मस्ट x minus x1 x2 minus x1 y minus y1 y2 minus y1 z minus z1 z2 minus z1। This is our x1 y1 z1 such that x minus 3 y plus 2 हो जाएगा, z minus 5 है तो plus 5 डिवाइड बाई इन दोनों का डिफरेंस 3 minus 3 minus 2 plus 2 6 plus 5, x minus 3 by 0 y plus 2 by 0 z plus 5 by 11। Equation of line in vector form, formula vector r equal to vector a plus lambda b। वेक्टर r इक्वल टू a क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a, फर्स्ट पॉइंट, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3i माइनस 2j माइनस 5k कैप, लैम्डा टाइम्स b माइनस a लिखना था, b माइनस a, इसमें से इसको माइनस 3 करेंगे तो 0i आ गया, -2 + 2 0j, 6 + 5 11k। इसको थोड़ा सिमेट्रिकल लिख सकते हैं, 3i माइनस 2j माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 11k कैप। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। गिवन लाइन इज वेक्टर r इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k कैप लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप। पहले कंपेयर करेंगे बच्चे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। वेक्टर a1 की वैल्यू होगी ये 2i माइनस 5j प्लस k कैप, b1 की वैल्यू होती है 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप। अदर लाइन इज वेक्टर r इक्वल टू 7i माइनस 6k कैप प्लस म्यू टाइम्स i प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। कंपेयर विद वेक्टर r इक्वल टू, सेकेंड लाइन कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, a2 प्लस म्यू b2। तो वेक्टर a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास ये वाला पार्ट 7i माइनस 6k कैप
वेक्टर B2 की वैल्यू है I प्लस 2J प्लस 2K कैप। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस। तो cos थीटा का फॉर्मूला B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर डिवाइड बाय B1 का मैग्नीट्यूड वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड होल मैग्नीट्यूड निकाल ही लेते हैं अलग अलग। B1 डॉट B2 इक्वल टू 3I प्लस 2J प्लस 6K कैप, मल्टीप्लाई करेंगे B2 के साथ, दैट इज I प्लस 2J प्लस 2K, डॉट प्रोडक्ट कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं को, तो 3 इंटू 1 प्लस ट्वाइस इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, 3 प्लस 4 प्लस 12, 12 4 16 3 19, ठीक है। नेक्स्ट वी फाइंड द वेक्टर B1 का मैग्नीट्यूड। दिस इज अवर B1, 3I, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ J का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ K का स्क्वायर, देन रूट 9 प्लस 4 प्लस 36, 40 49, दैट इज इक्वल टू 7। वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड सेम वे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अगेन 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 4 9, दैट इज इक्वल टू 3। Therefore cos theta इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट हमारी थी 19, नीचे थी 7 इंटू 3, 19 बाई 21, therefore theta इक्वल टू cos इनवर्स 19 बाई 21। फर्स्ट पार्ट, x given line is given lines are पहली है x माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू y माइनस 1 बाई 5 इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन माइनस 5, इसको मार्केट 1 कर लो। सेकेंड लाइन x प्लस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 4 बाई 8 इक्वल टू z माइनस 5 बाई 4, इसको सेकेंड मार्क करो। डायरेक्शन रेशियोज of line first are ये डिनोमिनेट पार्ट, दैट इज आप A1 B1 C1 सपोज कर सकते हो इसको, दैट विल बी इक्वल टू 2 5 एंड माइनस 5। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सेकेंड आर, मतलब A2 B2 C2 की वैल्यू -1 8 एंड 4। तो cos थीटा का जो फार्मूला होता है एंगल बिटवीन द टू लाइंस, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, देन मल्टीप्लाई बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर रूट मॉडुलस 1। चलो मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 4 डिवाइड बाई, इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, देन रूट सेकेंड का -1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें बच्चे इसको, ये आ गया हमारे पास 2 इंटू -2 प्लस 40 माइनस 20 डिवाइड बाई 4 प्लस 25 प्लस 25, नेक्स्ट वाले का 1 प्लस 64 प्लस 16 माई 20 22 18 रह गया, दैट कम आल्सो बी प्लस 18। रूट के अंदर देख लेते हैं, 54 81 का रूट तो 9 आ जाएगा, 3 रूट 6, 9 2 18, दैट इज इक्वल 2 बाई 3 रूट 6।
रैशनलाइजेशन करो तो और अच्छा है, रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 3 1/9 रूट 6, तो थीटा की वैल्यू जो आ गई है दैट इज कॉस इनवर्स रूट 6/9। आप यहाँ पर भी बच्चे आंसर छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है और दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स पॉजिटिव -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दिस इज ऑलरेडी ओके, इसका मार्केट 1। सेकेंड इक्वेशन को भी मॉडिफाई करना है हमने, -7 से डिवाइड करेंगे तो x -1/-3/7p, इसको ये ठीक है, y -5/1, -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे z -6 -5। सेकेंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 आर -3 2/7p 2, this we can mark B1 C1। Direction ratios of line second are this one -3/7p 1 -5, we can mark it A2 B2 and C2। According to question, given lines are perpendicular, given lines are perpendicular, therefore product of direction ratio will be 0, A1 A2 B1 B2 C1 C2 equal to 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -3 × -3/7 p + 2/7p × 1 + 2 × -5 equal to 0। 9/7p 2/7p -10 equal to 0। दोनों को ऐड करेंगे 11p/7 equal to 10, then p comes out to be 7 10 70/11, that is your answer। Question number 13, two lines दी हुई है equation, we have to prove that given lines are perpendicular। Direction ratios of first line, direction ratios of line 1 are 7 -5 1, 7 -5 1, that will mark it A1 B1 C1। Direction ratios of line second are 1 2 3, A2 B2 C2। Consider A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2। 7 × 1 plus -5 × 2 plus 1 × 3, 7 - 10 plus 3, 10 - 10 which is equal to 0, hence given lines are perpendicular। Okay, क्वेश्चन ये बेटा हमारे पास ये दो लाइंस गिवन दी हुई हैं एंड वी हैव टू फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं। कंपेयर फर्स्ट विद वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। तो वेक्टर a1 की वैल्यू आ गई है, ये वाला पार्ट a1 है, ये हमारा b1 है, i + 2j + k कैप, और b1 की वैल्यू i - j + k कैप। कंपेयर सेकेंड विद वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। ये वेक्टर a2 है, ये b2 वेक्टर है, therefore वेक्टर a2 इक्वल टू 2i - j - k कैप, और वेक्टर b2 की जो वैल्यू है 2i + j + 2k कैप। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट a2 - a1 देन मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड।
तो स्टार्ट करते हैं पहले b1 b2 से। वेक्टर b1 की जो वैल्यू गिवन दी है i माइनस जे प्लस के कैप, और वेक्टर b2 की जो वैल्यू गिवन दी हुई है 2i प्लस जे प्लस 2 के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला b1 क्रॉस b2, फर्स्ट रो में i जे कैप, सेकंड रो के इनके कॉफिशिएंट 1 माइनस 1 1, थर्ड रो के अंदर ये कॉफिशिएंट 2 1 एंड 2। एक्सपेंड बाई r1, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे i कैप माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 1 इंटू 1 माइनस 1, बीच में नेगेटिव साइन जे कैप। ये रो ये कॉलम 1 इंटू 2 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0 ही हो जाएगा, तो प्लस के कैप। ये रो ये कॉलम 1 प्लस 2 माइनस 3i प्लस 3k, ओके तो 0 हो गया। इसकी है हमारे पास b1 क्रॉस b2, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 18, 9 टू 18 होता है 3 रूट 2 यूनिट्स। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड a2 माइनस a1, वेक्टर a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू ये थी 2i माइनस जे माइनस के कैप माइनस साइन a1 i2 i कैप 2j प्लस k कैप। 2i में से i गया तो i कैप आ गया, माइनस j कैप माइनस 2j माइनस 3j माइनस 2k कैप। दिस इज a2 माइनस a1। नाउ वी फाइंड द डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर a2 माइनस a1। ये आया था माइनस 3i, जे मिसिंग है, जे भी लिख देते हैं बीच में, 0j प्लस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट इसके साथ a2 माइनस a1 i माइनस 3j माइनस 2k कैप। i के कॉफिशिएंट को i के साथ, j के कॉफिशिएंट को j के साथ, k के कॉफिशिएंट को k के साथ, माइनस 3 इंटू माइनस 2, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 6 माइनस 9। ये सारी वैल्यूज यहाँ डाल देते हैं। देखो शॉर्टर डिस्टेंस ऊपर आया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट माइनस 9 था, नीचे हमारे पास b1 b2 का मैग्नीट्यूड 3 रूट 2 आया था। 3 3 का कैंसर 3 बाई रूट 2, या इसको रैशनलाइजेशन करोगे 3 रूट 2 बाई 2 यूनिट्स। दैट इज अ शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। Question number 15. These two lines are given and we have to find the shortest distance between these two lines. First line, this is first, second. Line 1 shows that it passes through the point, इसको जीरो करेंगे माइनस 1 आएगा, माइनस 1 माइनस 1, पास थ्रू द पॉइंट माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड having direction ratios 7 minus 6, equation of line 1 in vector form. Vector form is vector r equal to a1 plus lambda b1, such that vector r, a1 means position vector of this point, that is minus I minus j minus k cap plus lambda times b1 vector, direction ratios 7i minus 6j plus k. Okay, clear? Here a1 equal to minus I minus j minus k, और vector b1 equal to 7i minus 6j plus k cap. Okay. Similarly vector equation of line second is vector r equal to, किस पॉइंट से पास करके आ रही है, 3 5 एंड 7,
3i plus 5j plus 7k cap plus mu times डायरेक्शन रेशियो पैरेलल क्या है 1 minus 2 1 so that becomes the parallel vector I minus 2j plus k cap. Here this we will call it a vector A2 3i plus 5j plus 7k cap and this we can call it vector B2 I minus 2j plus k cap. Okay, clear? Shortest distance between lines, उसका formula between lines is B1 cross B2 dot product with A2 minus A1 magnitude whole divided by cross product का magnitude. Now B1 cross B2 that is equal to I cap j cap k cap. First line के direction ratio 7 minus 6 1 1 minus 2 1. Expand करेंगे with first row I cap minus 6 plus 2 minus j cap 7 minus 1 plus k cap row column minus 14 plus 6 that equal to minus 4i plus 6 minus 6j minus 8k cap. We need magnitude also B1 cross B2 का magnitude minus 4 का square minus 6 का square minus 8 का square and square root 16 plus 36 plus 64 116. Okay, now A2 minus A1 A2 minus A1 3i 5j 7k 3i 5j 7k cap minus A1 minus I minus j minus k cap. Simplify करेंगे that becomes your 4i plus 6j plus 8k cap. Now dot product B1 cross B2 A2 minus A1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे. दैट वाज अवर minus 4 इधर है plus 4 minus 6 plus 6 minus 6 into plus 6 minus 8 plus 8 minus 16 minus 36 minus 64 that is equal to minus 116. ये जो वैल्यूज आई हैं डॉट प्रोडक्ट and magnitude we substitute here therefore shortest distance equal to that is your minus 1 by 6 divided by root 116 root 116 cancellation के बाद root 116 आ जाएगा to root 29 units. That is our answer. क्वेश्चन नंबर 16 में टू लाइंस की इक्वेशन दी है वेक्टर फॉर्म में. वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस. दिस वी कैन मार्क इट 1, दिस वी कैन मार्क इट 2. कंपेयर फर्स्ट विद वेक्टर r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1. वेक्टर a1 की वैल्यू आई प्लस 2j प्लस 3k कैप और वेक्टर b1 की जो वैल्यू है i माइनस 3j प्लस 2k कैप. क्लियर? सिमिलरली कंपेयर सेकेंड विद वेक्टर r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2. तो वेक्टर a2 की वैल्यू दिस मच 4i 5j 6k कैप. दिस इज योर b2 equal to 2i plus 3j plus k cap. First of all, we find the cross product of parallel vectors. b1 cross b2. I cap, j cap, k cap. b1 के कोफिशिएंट 1 minus 3 2 और b2 के 2 3 1. Expand by r1. I cap minus 3 minus 6
this row column 1 minus 4 k cap 3 plus 6 minus 9i plus 3j plus 9k cap. This is our cross product of B1 B2 vector. Magnitude minus 9 का square, 3 का square and 9 का square. That becomes 81 plus 9 plus 81. It becomes 171. Root find करेंगे तो 3 root 29 units. Now difference of position vectors A2 minus A1. 4i, 5j, 7k, 6k, A1, I cap, 2j cap plus 3k cap. 4i minus I, 3i. 5 minus 2, 3j. 6 minus 3, 3k cap. Now B1 cross B2 dot product A2 minus A1. That was this one. Minus 9i plus 3j plus 9k cap dot product A2 minus A1. 3i plus 3j plus 3k cap. Minus 9 into 3, 3 into 3 plus 9 into 3. Minus 27 plus 9 plus 27. This is cancelled. We got now shorter distance between required lines is B1 cross B2 dot product with vector A2 minus A1 divided by magnitude of vector B1 cross B2 vector. This product comes out to be 9 and this comes out to 3 root 29. 3 cancel, 3 by root 19 units. Question number 17. Again, two lines are given in vector form. We have to find the shorter distance between them. First we rearrange the lines. First, second. First can be written as vector r equal to, without t first line लिखेंगे, that it becomes your I minus 2j plus 3k cap plus t के coefficient, t कॉमन निकाल लेते हैं, minus I plus j cap minus 2k cap. Compare with vector r equal to vector a1 plus t time vector b1. There here vector a1 comes out to be I minus 2j plus 3k cap. Vector b1 equal to minus I plus j minus 2k cap. Similarly, second equation, second can be written as, without s coefficient लिखेंगे पहले, I minus j minus k, I minus j minus k. Now coefficient of you write s, I plus 2j minus 2k, s common, I plus 2j minus 2k cap. Again compare with vector r plus equal to vector a2 plus sb2. Vector a2 comes out to be I minus j minus k cap. Vector b2 equal to I plus 2j minus 2k cap. 2k, clear? Now we first find cross product, vector b1 cross b2. First row ijk, b1 के coefficient minus 1,
1 minus 2, then B2 1 2 minus 1 1 2 minus 2, expansion minus 2 plus 4 minus j cap, this row column 2 plus 2 plus k cap, there हो ये column minus 2 minus 1, that is 2i minus 4j minus 3k, that is your B1 cross B2. We have to find its magnitude also. That is your 4 plus 16 plus 9 root 29. A2 minus A1. This is our A2. I minus j minus k cap minus A1 ओपन अप करेंगे तो आई आई कैंसल, 0i प्लस j कैप माइनस 4k कैप, डॉट प्रोडक्ट B1 B2 और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, A2 माइनस A1 के साथ, दैट वाज दिस वन, 2i minus 4j minus 3k cap, dot product with 0i plus j minus 4k cap. कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं हम इससे, 2 इंटू 0 प्लस माइनस 4 इंटू 1 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 4, 0 minus 4 plus 12, that is equal to 8. Shortest distance between given lines. फार्मूला क्या था हमारे पास, B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट विद A2 माइनस A1 डिवाइड बाय क्रॉस B1 क्रॉस B2 इट्स मैग्नीट्यूड. डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ऊपर आई है, न्यूमरेटर 8, डिनोमिनेटर में रूट 29, 8 over root 29 units, that is our required shortest distance. होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा. अगर आप मेरे चैनल के और अपडेट जानना चाहते हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.